Welcome all. So now we will see effect of feedback on op amp, but before that we will see the equivalent circuit of op amp. So we know that there are two types: ideal op amp, practical op amp, right? In the op amp parameters we have studied ideal op amp, practical op amp. So first I will draw the equivalent circuit of ideal op amp. Equivalent circuit of ideal op amp. So we have inverting, non-inverting terminal. Here is input. Let us say plus V1. Here is another input, V2. Minus plus. Then inside op amp we have the dependent voltage source plus minus A into VID. This is a common ground. So this is the equivalent circuit of ideal op amp. This is equivalent circuit of ideal op amp. Now what is this source? It is a dependent voltage source, plus minus, right? And here I have written voltage. Plus minus means voltage, arrow means current. So plus minus is written, that means it is a voltage, and with that voltage again here I have written the voltage. So op amp is a very important point. Op amp is voltage controlled voltage source. Voltage controlled voltage source. Then आइडियल ऑप एम्प आपको पता है, आइडियल ऑप एम्प में क्या रहता है? इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो. So that's why I have shown here is my input resistance. See, between minus and plus we have the input resistance and it is infinite. That's why it is shown by the open circuit. Now output resistance is zero. Output resistance is zero. That's why here I have shown with the short line. Zero resistance means short. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये शॉर्ट है. So this is the equivalent circuit of ideal op amp, and op amp is a voltage controlled voltage source. Okay, now I will draw the diagram of equivalent circuit of practical op amp. Equivalent circuit of practical op amp. Now we have seen that practical op amp has input resistance. For IC741 input resistance is 2 mega ohm, output resistance is 75 ohm. So while drawing the practical equivalent circuit of practical op amp, we should show some resistances. So here is minus, here is plus, and we have the resistance R in. Here is one input plus minus V1, here is another input plus minus V2 with respect to ground, and again we have one dependent source plus minus A into VID, where VID is the difference between two inputs V1 and V2, and here is the output resistance. So this is output resistance RO and this is input resistance RIN. So this is the equivalent circuit of practical op amp. We have to show the input resistance. Practical op amp has finite input resistance, that is 2 mega ohm, and finite output resistance. Again, this op amp is also voltage controlled voltage source. Now what will be output expression? Output expression is, op amp is basically a difference amplifier. It will amplify the difference between two inputs. So you can see that it is nothing but A into VID. This is the output voltage expression. Okay. Now this VID you should take as
पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे नोटेशन कुछ भी रहने दो, यहाँ पे V2, here V2, here V1, no problem. You always have to write VID as positive terminal voltage. This is positive terminal minus negative terminal. So in this case, VID will be V2 minus V1. Okay. So these are the practical equivalent circuits, practical ideal. Now we will see op-amp in open loop. Op-amp in open loop. Okay. Open loop means there is no feedback. So let us say here is V2, here is V1. Now I will be discussing what are the limitations in the open loop. And here is the output. VO equal to, generally we don't show that voltage dependent source here. Okay. So here is the output and here are the supply voltage. Let us say plus 12 volt, minus 12 volt, or it can be plus 15, minus 15 volt. So output expression is VO equal to A into VID. And always you should subtract positive terminal voltage minus negative terminal voltage. A into V2 minus V1. नोटेशन पे मत जाओ कभी भी, नोटेशन यहाँ पे VA, VB और V2, V1. Your concept is that positive terminal voltage minus negative terminal voltage, V2 minus V1. Okay. अब हम बात करेंगे ओपन लूप में आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका, VO इक्वल टू A इंटू V2 minus V1. Okay. Now we know that in open loop, what is the voltage gain in open loop? In open loop, voltage gain is 2 into 10 raised to 5 for IC 741. एक नॉर्मल IC 741 की बात करते, कितनी वोल्टेज गेन है, 2 into 10 raised to 5. So if I substitute this value here, so V0 equal to 2 into 10 raised to 5 into V2 minus V1. Suppose let us say case number 1, दोनों इनपुट का डिफरेंस है, let us say VID इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट. मैंने अज्यूम किया कि दोनों इनपुट का डिफरेंस क्या है, 1 मिलीवोल्ट. तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, VO इक्वल टू 2 into 10 raised to 5 and it is 1 into 10 raised to minus 3 millivolt. So its value is 200 volt. बट अगर आप सोचेंगे क्या 200 वोल्ट पॉसिबल है, क्या 200 वोल्ट पॉसिबल है, सो योर आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा कुछ हो जाता कि आप कोई एक छोटा सा ऑप एम्प लेके आप 200 वोल्ट जनरेट कर सकते, तो आपको कोई भी पावर जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी पावर प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती. डायरेक्टली आप 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 500 वोल्ट, कितना भी वोल्टेज जनरेट कर सकते थे. बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ऑप एम्प हम हर बार बोलते कि ऑप एम्प इज एम्पलीफायर, ऑप एम्प इज एम्पलीफायर. बट एक हिडन ट्रूथ ये है कि मैक्सिमम आउटपुट जो मिलेगा आपको ऑप एम्प को, जो कि हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वी आर ओनली प्रोवाइडिंग, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द सप्लाई वोल्टेज. ऑप एम्प वोल्टेज कैन नॉट गो बियॉन्ड सप्लाई वोल्टेज. सो ये जो 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 500 वोल्ट ये फॉर्मूले से आता, जो कि पूरी की पूरी तरीके से गलत है. सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन supply voltage. Even 90% students do this mistake. They know the formula, they apply it, they calculate it, and if whatever value they get, they may feel it is correct, but it is incorrect. 200 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं है. So आपका मैक्सिमम आउटपुट कितना आएगा इस केस में, V0 इक्वल टू, इधर कितना आया, प्लस साइन के साथ वोल्टेज आया, तो हमारा प्लस सप्लाई वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट. So output voltage is 12 volt. This is the correct answer. This is your correct answer.
दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलो मान लो एक दूसरी केस में मेरा डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स इज VID इक्वल टू -2 मिलीवोल्ट। सो इन दिस केस आउटपुट विल बी 2 इंटू 10⁵ इंटू -2 इंटू 10⁻³ तो इसका आंसर अभी कितना आएगा? -400 वोल्ट। अगेन -400 वोल्ट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, गलत है ये। तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में कितना आ जाएगा? आउटपुट वोल्टेज विल बी -12 वोल्ट। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पोलैरिटी, +12 वोल्ट प्लस VCC और -VEE। ओके, सो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे थे आप? -12। सो -12 इज द आंसर। ओके, तो अब आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज है, बिकॉज गेन की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁵, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डिफरेंस वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अभी एक लिमिटेशन समझ में आ जाएगी ओपन लूप की, कि आपको ये जो डिफरेंस वोल्टेज है इसको कम रखना पड़ेगा, इसको मिनिमम रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा? हमेशा सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, +12 वोल्ट -12 वोल्ट। तो इस वजह से ऑप एम्प का जो लिमिटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। आपको हमेशा टेक केयर करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस वोल्टेज कम रहे। अगर ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई वोल्टेज मिलेगा प्लस VCC माइनस VEE, तो यहाँ पे तो कुछ एम्प्लीफिकेशन ही नहीं हो रहा। अगर प्लस VCC माइनस VE चाहिए तो डायरेक्टली हम जो सप्लाई वोल्टेज है वही यूज़ कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ भी एम्प्लीफिकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। तो फर्क क्या है कि आपको हमेशा ओपन लूप में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि जो है वोल्टेज गेन का डिफरेंस कम रहे, वोल्टेज गेन का डिफरेंस कम रहे, सो दैट आउटपुट विल नॉट बी प्लस VCC एंड माइनस VE ऑलवेज। ये चीज आपको समझ में आ रही क्या? दैट because of this 2 into 10⁵ in open loop the voltage gain is 2 into 10⁵, you always have to keep this difference very small, then only for amplification purpose you can use the op amp, otherwise output is always a supply voltage, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो ये एक ऑप एम्प की सबसे बड़ी लिमिटेशन आ गई कौन से केस में? ओपन लूप में। This is the limitation in the open loop, that we have to keep that VID very small, then only we can use for an amplification purpose। ठीक है। दूसरी चीज, we have seen that for IC 741 our unity gain bandwidth is 1 megahertz, unity gain bandwidth is 1 megahertz। मैंने आपको ये भी बताया कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या रहता? कांस्टेंट रहता। So in open loop, if I equate this unity gain bandwidth with open loop gain into bandwidth, this capital A is the open loop gain into bandwidth. So ये कितना हो जाएगा? 1 megahertz equal to 1 into 10⁶ equal to 2 into 10⁵। ओपन लूप गेन कितनी है ऑप एम्प की? फॉर IC 741 इट इज 2 into 10⁵ into bandwidth। सो ओपन लूप में बैंडविड्थ कितनी आएगी? ये जो बैंडविड्थ है ये ओपन लूप की बैंडविड्थ है। सो इफ आई कैलकुलेट दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5 हर्ट्स। तो ओपन लूप में बैंडविड्थ कितनी आ गई? 5 हर्ट्स। सो ये दूसरा लिमिटेशन ऑप एम्प का पता चला कि बैंडविड्थ भी क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। इन ओपन लूप द बैंडविड्थ वैल्यू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, यूजफुल रेंज इज जस्ट 0 to 5 हर्ट्स। तो ये जो ऑप एम्प की ओपन लूप गेन हाई होने का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ऑप एम्प की बैंडविड्थ भी क्या है? बहुत कम है, ओनली 0 to 5 हर्ट्स। ओके, सो इसीलिए हम ऑप एम्प को ओपन लूप में प्रिफर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन द क्लोज लूप। we 95% 98% ऑप एम्प आर यूज्ड इन दी क्लोज लूप। अब क्लोज लूप लगाने से क्या हो जाएगा? क्लोज लूप लगाने से आपकी गेन डिक्रीज हो जाएगी। क्लोज लूप लगाने से हमेशा याद रखो, इन कंट्रोल सिस्टम्स इन योर EDC सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ क्लोज लूप व्हाट इज द इफेक्ट? द गेन वैल्यू गेट्स रिड्यूस्ड। अब गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है आपका? कांस्टेंट है। अगर गेन रिड्यूस हो रही तो बैंडविड्थ क्या होगी? बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। तो आपकी यूजफुल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। और इफेक्ट है क्लोज लूप के, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट गेन विल रिड्यूस। सेकंड पॉइंट, बैंडविड्थ विल
increase because gain bandwidth product is constant. Third, input resistance will also increase. जो आपका 2 मेगा ओम था उससे इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. फोर्थ इज वी ऑलवेज वांट व्हाट इज आइडियल वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस 0 फॉर ओपन लूप. आउटपुट रेजिस्टेंस इज 75 ओम. सो बिकॉज ऑफ क्लोज लूप, बिकॉज ऑफ फीडबैक, क्लोज लूप कैसे मिलेगा आपको? फीडबैक यूज करने से. So because of feedback, the output resistance also decreases. So these are the 4 important points. Gain will reduce, bandwidth will increase, input resistance, output resistance और अच्छा होगा. Closed loop से क्या होगा? Input resistance और अच्छा होगा. अच्छा कैसे होगा? और increase करने से input resistance अच्छा होगा. Output resistance और अच्छा होगा. अच्छा कैसे होगा? उसको और decrease करने से, और कम करने से आपका output resistance अच्छा हो जाएगा. आपका सर्किट अच्छा कब बनेगा? जब आपकी गेन कम होगी. अदरवाइज क्या हो रहा था? वो सप्लाई वोल्टेज मिल रहा था आउटपुट में. सो गेन अच्छी कब होगी? जब आप गेन को रिड्यूस करेंगे. बैंडविड्थ यूजफुल रेंज अगर आप इंक्रीज करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा. सो बैंडविड्थ शुड ऑल्सो increase. So this is the concept. Once again quickly I will repeat. Output is A into VID, that is nothing but 2 into 10 raised to 5 into VID. अब लिमिटेशन क्या है कि ये वैल्यू काफी हाई है, इसके वजह से आउटपुट क्या आ जाएगा? हमेशा प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज, आइदर प्लस VCC और माइनस VEE. अगर आपको एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करना है तो ये डिफरेंस को हमेशा कम रखना पड़ेगा, एज लो एज पॉसिबल, एज लेस एज पॉसिबल. तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट ऑलवेज फिजिबल, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट टू कीप द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स वेरी वेरी स्मॉल इन द रेंज ऑफ microvolt, then only for amplification we can use the op amp. तो इसलिए, और दूसरी चीज क्या हो रही कि बैंडविड्थ कम मिल रही. बैंडविड्थ इज जस्ट 5 हर्ट्ज फॉर IC 741. तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर क्लोज लूप. दैट्स व्हाई वी गो फॉर दी क्लोज लूप. क्लोज लूप मतलब फीडबैक. इससे क्या क्या हो रहा कि सबसे जो पहली हमारी प्रॉब्लम थी, गेन बहुत हाई था तो गेन को हम रिड्यूस कर रहे, गेन को हम रिड्यूस कर रहे. बैंडविड्थ जो कम थी उसको हम इंक्रीज कर रहे. तीसरी चीज, इनपुट रेजिस्टेंस को और अच्छा कर रहे. और अच्छा कैसे करेंगे? उसको और अच्छे से इंक्रीज करके. बिकॉज आइडियल वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मैक्सिमम रहना चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस. आउटपुट रेजिस्टेंस और अच्छा करेंगे. और अच्छा कैसे करेंगे? आइडियल वैल्यू कितनी है? 0. तो 0 के पास में जाके और अच्छा करेंगे. तो आउटपुट रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? क्लोज लूप लगाने से आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी decrease. So this is the concept which we have to study in the next point, that is nothing but voltage series feedback amplifier and voltage shunt feedback amplifier. feedback amplifier, तो ये feedback के इफेक्ट हमको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक? दैट इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज, वोल्टेज गेन डिक्रीज, बैंडविड्थ इंक्रीज. ठीक है. Now, before we go for the next class, voltage series, voltage shunt feedback amplifier, we have one more term. A is the open loop gain. I will use this notation. Capital A is the open loop gain. Then second point I will use is ACL. That is indicating closed loop gain. थर्ड चीज हम डिफाइन करेंगे, दैट इज कैपिटल B, एंड इट इज नथिंग बट फीडबैक पाथ गेन. फीडबैक पाथ गेन. एंड फॉर वोल्टेज सीरीज एंड वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर इट्स वैल्यू इज सेम, दैट इज नथिंग बट R1. ओके, दैट वैल्यू वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. सो B इज द फीडबैक पाथ गेन. जो भी आपका फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा उससे आपका ये फीडबैक पाथ गेन जनरेट होगा. तो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि इनपुट रेजिस्टेंस और इंक्रीज होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस और डिक्रीज होगा, गेन बैंडविड्थ, गेन डिक्रीज होगी, बैंडविड्थ इंक्रीज होगा. तो राइट नाउ ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस, बाय हाउ मच फैक्टर योर बैंडविड्थ विल इंक्रीज, बाय हाउ मच फैक्टर योर बैंडविड्थ विल इंक्रीज. तो जो ओपन लूप की बैंडविड्थ है, दिस इज द ओपन लूप बैंडविड्थ. बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही तो हम ये जो फैक्टर है 1 +
A into B. A is the open loop gain, B is the feedback path gain. So ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. ये जो तीन चीजें आपकी बैंडविड्थ, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये तीनों में हम आइदर वी विल मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर, आइदर वी विल मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर 1 plus AB, और वी विल डिवाइड बाय दिस फैक्टर 1 plus AB. चलो अभी आप ही लोग बता सकते हैं मुझे क्लोज लूप से बैंडविड्थ क्या होगी. क्लोज लूप से बैंडविड्थ आपकी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये क्वांटिटी डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 प्लस 1 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. सो बैंडविड्थ क्लोज लूप में इंक्रीज होगी, तो आपकी क्लोज लूप की बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, क्लोज लूप की बैंडविड्थ आ जाएगी ओपन लूप बैंडविड्थ, ओपन लूप फ्रीक्वेंसी इनटू 1 plus AB, बिकॉज बैंडविड्थ आपकी क्लोज लूप में क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है. देन मैंने आपको बोला इनपुट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है क्लोज लूप में, इंक्रीज या डिक्रीज. इनपुट रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होने वाला है. सो इनपुट रेजिस्टेंस इन द क्लोज लूप विल बी आर इन इक्वल टू आर इन विथ फीडबैक और यू कैन से क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू ओपन लूप इनपुट रेजिस्टेंस. अब इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है, कितने से इंक्रीज होने वाला है, 1 plus AB के फैक्टर से. It will increase by a factor of 1 plus AB. Now with the closed loop output resistance क्या होने वाला है, क्लोज लूप की वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. आउटपुट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज. अब कितने के फैक्टर से डिक्रीज होगा वो, 1 plus आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 plus AB. तो यहाँ पे ही मैंने आपको 3 फॉर्मूले याद करा दिया कंसेप्चुअली. क्या होगा, ओपन लूप क्लोज लूप का इफेक्ट क्या होगा, गेन डिक्रीज होगी, बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. ये गेन का थोड़ा सा अलग है, इट इज नॉट मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर 1 plus AB. सो वी विल नॉट गो, वी आर राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस, बट दिस 3 यू कैन इजीली रिमेंबर. इंक्रीज डिक्रीज, ये जो 3 चीजें है, इंक्रीज डिक्रीज कितने के फैक्टर से होगी, 1 plus AB के फैक्टर से. आइदर इट विल बी मल्टीप्लाई और इट विल बी डिवाइड 1 plus AB. तो इनपुट रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे आप, इंक्रीज करना है आपको इनपुट रेजिस्टेंस. तो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इज इनपुट रेजिस्टेंस इनटू 1 plus AB. तो 1 plus AB के फैक्टर से इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हो गया. आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए विथ फीडबैक, तो इट इज आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 plus AB. तो इतने के फैक्टर से आपका आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. बैंडविड्थ आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है. तो कितने के फैक्टर से, ओपन लूप बैंडविड्थ, क्लोज लूप बैंडविड्थ. सो दिस इज ओपन लूप बैंडविड्थ, इट विल आल्सो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 1 plus AB. Okay, so these 3 formulas are same for voltage series feedback amplifier and voltage shunt feedback amplifier. So there I will not repeat this concept that why bandwidth will increase, why output resistance will decrease, why input resistance will increase. So we will stop here. Thank you.